So let's begin our lecture today. As you know that we have been studying direct indirect speech for a few lectures, and today we are going to learn about how to convert let's type sentences into indirect speech. As you know that when we started to learn indirect speech, we learned about basic rules of verb, time indicating words and pronouns. Then we learned about assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and last week we studied about optative sentence. And in optative sentence we studied about three types of sentences, three types of wishes that we have to convert into indirect speech. And today is the last lecture for method, but not the last lecture for indirect speech. From next week onwards, we shall start paragraphs, how to convert paragraphs. But 90% of your work is over when you have studied all types of sentences. So today is the last type of method that you are going to learn, and that is let's type sentences. Let's type sentences. As you know very well that what the let suggest proposal. Okay, that suggests that someone is proposing something. For example, I say let's start to solve some paragraphs, let's start to revise the grammar. Okay, that means I am proposing something, that we should start learning new topics, we should revise some topics. That is the meaning. Okay, that is let's type of sentences. Okay, let's start to learn about rules. What are the rules? In reporting verb, you have to write suggested to. Okay. In a reporting verb, you have to write suggested to or proposed to. Okay, any one you can write, but suggested is very much better and you can remember easily. Or else you can also write proposed to. Second rule is about connecting. For connective, you have to write that. Okay, for connective you have to write that. Third rule is about the direct speech sentence. What we have to make change in direct speech sentence. First thing is that you have to remove let's. Okay, so let's is removed. Let's is removed. You have to remove this let's. Okay, and you have to write we should or they should. We should or they should in place of, instead of let's. ओके, ये जो let's है इसकी जगह पर आपको लिखना है we should और they should. कब we should लिखना है और कब they should लिखना है वो भी एक रूल है. ओके, वो भी आपको पता होना चाहिए. If in listener and speaker, if there is I, we, me or us, if four of these any pronoun is present either in listener or speaker, you have to use we should. Okay, if
I, we, me, or us. Any of these pronouns is present in either listener or speaker, then you have to use this we should. Otherwise, for rest of the pronoun, for rest of the pronoun, that is a very long list, so I am not writing. At that time, you have to use they should. I think is it very much clear? कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो. रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस क्लियर है. Sir, हाँ बोलो. how I and me will convert into we? सॉरी फिर से बोलो. सर आई और वी है वो वी में कैसे कन्वर्ट होंगे? आई और आई का तो आई ही रहता है ना जब हम ओके. कन्वर्ट कोई भी सेंटेंस करते हैं तो. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी शैल लर्न एग्जांपल्स. Okay, of course I is singular, but when we add listener or speaker with I, what becomes plural, that's why it is converted into we, and it will be very much clear when you will learn exercise or example. And for rest of the pronouns, that means you, your, yours, he, him, his, his, she, her, hers, they, them, their, theirs. Okay, कोई रह गया है तो भी he, she, it, सारे उसमें आपको लिखना है they should, and you have to remove these lets. Okay, ये lets को आपको remove करना है. then lets को remove कर दिया, जो verb के changes है वो आपको नहीं करने हैं. Okay, verb related changes are not done, वो हम नहीं करते. but okay, but if there is another sentence, there is subordinate sentence, then verb related changes, verb related changes are done in subordinate changes. अभी ये आपको पता है. ओके, सबऑर्डिनेट चेंजेस कौन से हैं? सबऑर्डिनेट सेंटेंस related changes are done in एक्सक्यूज मी सर. subordinate. Yes, Rahul sir. सहज ज्वाइन हुआ है. सहज जिसने 34 लिखा है अपना रोल नंबर, Sahaj जिसका रोल is नंबर 37 है. Sahaj is very much irregular student sir. Every day he comes late, और यही उसकी कुछ कंप्लेंट्स रहती है सारी. सहज कहाँ है क्लास में? सहज है क्लास में प्रेजेंट है सर, सहज चौहान. हाँ, उसने 34 लिखा है अपना रोल नंबर, सहज जबकि उसका अनम्यूट करो रोल अपने नंबर आप को. 37. सहज तो अभी बोल भी नहीं रहा है. हाँ, उसको अभी नहीं बोलेगा वो. कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, ओके. बाद में मैं उसकी ओके जो भी ओके. होगी ले ओके. लूंगा कमी. Verb related changes are not done in subordinate sentence. That means अगर सेंटेंस ऐसा है, लेट्स गो फॉर अ वॉक. ओके, तो इसमें जो वर्ब है वॉक, उसमें कोई चेंज नहीं करते. मगर सेंटेंस ऐसा है, लेट्स गो फॉर अ वॉक वेयर वी वेंट यस्टरडे, जहां हम परसों गए थे, तो यहाँ पर वेंट का हेड गॉन होगा. क्यों? क्योंकि मेन सेंटेंस जो है लेट्स गो फॉर अ वॉक, उसमें नहीं करना, मगर उसमें दूसरा सेंटेंस जो आया वेयर के बाद, उसमें चेंज करना है. ओके, और बाकी के जो है, ओके, बाकी के जो दो बचे कौन से हैं वो? टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस are done according to listener and speaker. That is very much common, you know it very well. According to listener and speaker.
So these are the rules. ओके अभी एग्जांपल देखेंगे तो वो आपको वेरी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. My friends, my friends say to me, let's go for a walk. Let's go for a walk. ओके सो फर्स्ट थिंग इज दैट एग्जाम में आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि लेट्स वाली मेथड आपको यहाँ पर फॉलो करनी है. दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके रूल्स क्या है. देन एंड ओनली यू कैन कन्वर्ट. तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहला रूल आपको पता है क्या लिखना है. ओके तो यहाँ पर होगा माय फ्रेंड्स. ये याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज में आंसर्स देन यू विल बी एबल टू आंसर. ओके माय फ्रेंड्स सजेस्टेड टू मी. ओके ये पहला रूल. ए लिसनर बाद में कनेक्टिव दैट. लेट्स रिमूव करना है. मी है यहाँ पर. ओके तो मैंने बोला आई मी वी अस है तो आपको लिखना है वी शुड. ओके और बाय ट्रांसलेशन यू कैन ऑल्सो डिसाइड. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला तो मीन्स के हमें जाना चाहिए वॉक पर. ओके तो यहाँ पर लिखना है आपको वी शुड. लेट्स को रिमूव करना है. वी शुड गो फॉर अ वॉक. My friend suggested to me that we should go for a walk. इस तरह से. ओके किसी को डाउट्स है सेंटेंस में तो पूछ लो. बहुत इजी है. देखो कौन से रूल्स मैंने अप्लाई किए वहां पर. सबसे पहला ये जो सेड टू है उसकी जगह पर क्या लिखा सजेस्टेड टू. ओके कनेक्टिव क्या लिखा दैट. ओके ये लेट्स को रिमूव किया उसकी जगह पर क्या लिखा मैंने वी शुड. ओके एक गो है तो गो का वेंट नहीं किया है. ओके मगर यहाँ ऐसा सेंटेंस होता लेट्स गो फॉर अ वॉक वेर वी गो वेर वी वेंट यस्टरडे. तो वेंट का हेड कौन होगा दूसरे सेंटेंस में. मगर पहले सेंटेंस में ऐसा होगा नहीं. ओके वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप रूल पढ़ चुके हो उसमें. ओके ओके फाइन. चलो चलो वन एग्जांपल इज इनफ. तो वो आप एक्सरसाइज पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा. अभी दूसरे जो सेंटेंस हमें पढ़ने हैं वो है लेट. क्यों नहीं चल रही है. ओके let me, let him, let her, and let them type sentences. Okay, let me, him, her और them type sentences. मतलब us के अलावा बाकी के सारे प्रोनाउन आ गए इसमें. देखो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ये सेकंड पर्सन प्लूरल तो उसमें आ गया. प्लूरल नहीं सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन. ओके अस के अलावा जितने भी है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ए है सेकंड पर्सन सिंगुलर. ए है सॉरी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये है थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके अस के अलावा जो याद नहीं रहता है तो आपको अस की लेट्स की ओनली वन मेथड और इसके अलावा जितने प्रोनाउन है उसके दूसरे मेथड. ओके इसमें दो मेथड है. Let me, him, her, them types of sentences are converted into indirect speech. They may be converted by two methods. Any one you can use and both are right. But I will teach you only one method. Okay? Rules उसके. तो सबसे पहला रूल है उसका रिपोर्टिंग वर्ब. सबसे पहला कोई भी रूल है उसमें आपको लिखना है रिक्वेस्टेड. रिपोर्टिंग वर्ब में आपको लिखना है रिक्वेस्टेड. देन कनेक्टिव. कनेक्टिव में आपको लिखना है जो इंपेरेटिव में लिखते थे वो टू. ओके थर्ड रूल मेन सेंटेंस. उसमें आपको लेट को रिमूव नहीं करना है. लेट इज नॉट रिमूव. वो उसमें आपको हैबिट हो गई वो लेट्स में लेट रिमूव करने की मगर यहाँ लेट रिमूव नहीं करना है. ये थोड़ी इजी मेथड है.
verb related changes आर नॉट डन। इसमें भी वर्ब रिलेटेड चेंजेस हमें नहीं करने हैं, मगर एक ही सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस है तो करने हैं, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा वो। फिर बाकी के जो दो चेंजेस है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस, वो आपको करने हैं। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउन। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। मिस्टर शाह said to Mr. Shah said to his neighbor, "Let me park my scooter in your compound." Mr. Shah said to his neighbor, "Let me park my scooter in your compound." मुझे मेरा स्कूटर आपके कंपाउंड में पार्क करना है। ओके, चलो इसको देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, जो सेड टू लिखा है उसकी जगह पर आपको लिखना है रिक्वेस्टेड। ओके, मिस्टर शाह requested his neighbor। कनेक्टिव लिखना है टू, लेट को रिमूव नहीं करना है, मगर ये कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा। ओके, टू लेट। मी मतलब किसे पार्क करना है, मिस्टर शाह को, तो होगा हिम। वर्ब रिलेटेड चेंजेस नहीं करने हैं, तो पार्क का होगा वही पार्क। माई स्कूटर मतलब मिस्टर शाह का स्कूटर, तो यहाँ पर होगा हिज स्कूटर। इन किसके कंपाउंड में, मेरे नेबर के। ओके, तो इन हिज कंपाउंड, इन हिज कंपाउंड। ओके, देखो कौन से चेंजेस किए मैंने। सेड टू है उसकी जगह पर क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। ओके, स्पीकर, listener, these are very much important because pronoun related changes are done according to who is the speaker and who is the listener। कनेक्टिव टू, लेट को रिमूव नहीं करना है, ये प्रोनाउन के चेंजेस, ये वर्ब के चेंजेस ऐसे ही लिखना है, ये प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन के, इस तरह से। ओके, तो ये सारे रूल्स आ गए। अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट बिफोर मूविंग टू दैट पेज, एक्सरसाइज पेज, आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है तो क्लियर हो जाए। लेट्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स किसका शॉर्ट फॉर्म है आपको पता है, लेट अस, उसका मतलब होता है चलो हम। ओके, मतलब हम साथ करते हैं, कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं, तो दैट्स वाई रिपोर्टिंग वर्ब में लिखना है सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। कनेक्टिव में लिखना है दैट। लेट्स को रिमूव करना है, उसकी जगह पर वी शुड या दे शुड लगना है। आई वी मी अस है तो आपको लिखना है वी शुड। और फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन, बाकी के सारे प्रोनाउन, उसमें आपको लिखना है दे शुड। ओके, वर्ब के चेंजेस नहीं करने हैं, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड और प्रोनाउन के चेंजेस करने हैं। भले ही मैंने यहाँ पूरा सेंटेंस लिखा है, मगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो भी आपको याद रहे नोट्स आप लिखते हो। ओके, एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक। अपनी नोट्स रेडी होगी सारे सारे स्टूडेंट्स की। ओके, बिकॉज अभी थोड़े ही दिन में शायद ऐसा वक्त आ जाए आपको नोट दिखानी होगी। ओके, सो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि जैसे लेक्चर देख के या सुन के बैठे रहते हो, कुछ लिखते नहीं हो, तो अच्छी तरह नोट्स रेडी कर देना, बिकॉज आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट माई फॉलो अप वर्क, what the students are doing। My friend said to me let's go for a walk। एग्जाम्पल, सजेस्टेड टू, लेट्स की जगह पर लिखना है वी शुड, कनेक्टिव लिखना है दैट। ओके,
दूसरे सेंटेंस अस के अलावा जो भी प्रोनाउन है मी हिम हर देम लेट यू इस तरह से नहीं बोलते इसलिए वो नहीं लिखा है ओके सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल रिपोर्टिंग वर्ब में लिखना है रिक्वेस्टेड कनेक्टिव लिखना है टू लेट को रिमूव नहीं करना है बाकी के रूल सेम है वर्ब के भी चेंजेस नहीं करने हैं और बाकी के दो चेंजेस है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस वो चेंजेस आपको करने हैं ओके ओके सो लेट्स मूव टू or exercise. 1 minute कहाँ गई exercise? Yes, yes. These are 5 operative sentences that we studied in the last lecture. पहले उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कितना याद है आपको मैंने बोला था मेरे पास 5 सेंटेंस तो मैंने इंटरनेट पर से आपको 10 या 15 सेंटेंस लिख कर सॉल्व किए थे हमने तो वो 5 सेंटेंस ए थे ओके चलो जो पहला है द स्टूडेंट सेड टू द क्लास टीचर गुड नून सर चलो क्या होगा इसका आंसर कोई भी बता सकता है The student wished the class teacher good noon. ओके द स्टूडेंट्स विश द क्लास टीचर गुड नून ओके फाइन फिर सेकंड वन है माय फ्रेंड सेड टू मी ऑन माय बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे My friend wished me on my birthday and many happy returns of the day. okay very fine third one the beggar said to me may you live long The beggar begged me to live long. please repeat the answer Siddharth The beggar blessed me to live long. ओके करेक्ट एंड आइदर कोई दूसरा आंसर लिख सकते हैं इसके अलावा The beggar blessed me that I might live long. okay that's also right answer and Siddharth also said the right answer 69 the priest said to them may God bless you the priest said to them may God bless you क्या होगा इसका आंसर The priest blessed them. God might bless you. that भूल गए बेटा Bless you. that God might That God might bless you. bless them listener is they 70 Darshan said goodbye my dear friend Darshan wished his dear friend goodbye okay okay fine Bhairavi said to her mother let me help you mommy बोलो क्या होगा इसका yes I am noticing the students Bhairavi, who are leaving हाँ कृषा बोलो Bhairavi requested her mother that Bhairavi requested her mother to let her help her. ओके वेरी गुड और मम्मी नहीं लिखना है ओके वेरी गुड भैरवी रिक्वेस्टेड हर मदर सेड टू नहीं लिखना है भैरवी रिक्वेस्टेड हर मदर टू let her help her very fine very good 52 my friend said to me on my birthday let's go to see Bombay yes Panchal Mehul let me note down his name who is leaving yes my friend said to me on my birthday let's go to see Bombay My friend suggested to me on my birthday that we should go to see Bombay. okay Hanit very good right 53 Mr. Shah said to the watchman let me park
my scooter here. चलो ये तो हो गया मैंने एग्जांपल में. Mr. Shah requested the watchman to let him park his scooter there. Okay. 54. Darshan said to his father, let me join the science stream. Darshan requested his father to let him join the science stream. Very good. 55. The gardener said to the old man, let these children play whatever they like. The gardener requested the old man to let those children play whatever they like. Okay, the gardener requested the old man to let those children play whatever they. यहाँ पर चेंज करना है क्योंकि whatever के बाद सेंटेंस चेंज हुआ तो यहाँ पर आपको लिखना है like. 56. The science teacher said to the principal, let's hold a science fair on 15th of August. The science teacher suggested the principal that they should hold a science fair on 15th of August. Suggested to the principal. Listener है, then you must have to write the listener. Suggested to the principal that they should hold a science fair on 15th of August. 57. Winkle said to Twinkle, let me do my work myself. ये बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वैदेही, ध्वनि, करण, शिल्पा, रश्मिता, ध्रुवी, वेनु, ये सबने तो कुछ डाउट्स भी नहीं है. उनके मार्क्स भी कैसे आते हैं? क्या पढ़ते हो? अब नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, आंसर ट्राई तो करो. हाँ बोलो. यस. Twinkle suggested Twinkle to let her do her work herself. herself. Okay. जितना आप एक्टिव हो क्लास में उतने ज्यादा मार्क्स. ये रूल रट लो अच्छी तरह से. ओके, ये सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई होता है. ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है और नहीं बोलेंगे ओके तो उनके मार्क्स कम नहीं आएंगे, मगर इतने तो कम आएंगे नोटिसेबल. ओके, 97 आते हैं तो 90 92 या 93 पर स्टॉप होते हैं तब उन्हें पता चलेगा. सो बी एक्टिव इन क्लासरूम. जिनके 45 आते हैं वो भी. ओके. उमा सेड लेट मी लिसन टू सारेगामा. जेनिस पोकिया, आपको आवाज नहीं सुना दे रही है. ये आपकी कितने मंथ यू हैव बीन कंप्लेनिंग, कितनी बार कंप्लेन की आप अपना हेडफोन चेंज करो क्योंकि वॉइस इज वेरी मच क्लियर. उमा सेड लेट मी लिसन टू सारेगामा. Uma requested to let her listen to Saregama. Okay. Uma requested to let her listen to Saregama. Okay. 60. Amita said to Vibha, let's go to Mehta restaurant for some snacks. Amita suggested Viva that they should go to Mehta restaurant for some snacks. Okay, right. बाद में विभा सेड टू. ओके, सेम सेंटेंस थोड़ा चेंज है इसमें. चॉइस रेस्टोरेंट है फॉर लाइट रिफ्रेशमेंट. 62. लेट माय सर्वेंट टेक सम फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन सेड मिसेस शाह टू रूपाबेन. सर मैं बोलूं? Mrs. Shah requested Rupaben. हाँ करण बोलो. करण गिरी बोलो. Shah requested to Rupen Ben to let her servant take some flower from her garden. Okay, right Karan, good. 63. The principal said to the managing committee, let's start a computer course from the new year. The principal suggested the managing committee that we should start a computer course from the new year. Wrong. चलो दूसरा कोई स्टूडेंट बोलो.
The principal suggested to the managing committee that they should start a computer course from the new year. ओके राइट, प्रिंसिपल है, मैनेजिंग कमिटी, इसमें आई मी, ओके वी अस नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दे शुड। ओके 64, the children said to their father, let's go on a tour to Bangalore during the summer vacation. The children suggested to their father that we should go on a tour to Bangalore during the summer vacation. Wrong, दूसरा कोई स्टूडेंट बोलो, रिपीट करो आंसर। The children suggested to their father that they should go on a tour to Bangalore during the summer vacation. जील, ध्यान रखो बेटा, स्पीकर चिल्ड्रन है, देयर फादर है, हम कहीं है नहीं, देन हाउ कैन वी राइट वी शुड, दे शुड गो ऑन अ टूर टू बैंगलोर। 65, हाँ बोलो जी। सर 63 वाले में प्रपोज्ड आएगा, प्रपोज टू। हाँ वही प्रपोज, क्या बोला उन्होंने आंसर, रिक्वेस्टेड बोला। नहीं मतलब सजेस्टेड की जगह पे प्रपोज भी आ सकता है ना, हाँ वो ज्यादा सही बैठेगा इसमें। यस, सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड टू। ओके, सजेशन की जगह ये प्रपोजल इज वेरी मच बेटर बिकॉज प्रिंसिपल इज प्रपोजिंग समथिंग दैट दे शुड स्टार्ट कंप्यूटर कोर्स, फाइन। 65, the brilliant student said to the teacher, let Ashwari leave the class early as she is suffering from fever. The brilliant student suggested the teacher to let Ashwari leave the class early as she was suffering from fever. Wrong. यही मिस्टेक्स आप करते हो एग्जाम में, फिर मार्क्स चले जाते हैं, भूल जाते हो कुछ। चलो दूसरा कोई स्टूडेंट। सर रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। हाँ वही दो मिस्टेक है, वो भी मिस्टेक की, और is welcome. फिर से बोलो, क्या इज वेलकम, यहाँ पर रिक्वेस्टेड होगा। ओके, दूसरी मेथड, क्यों, क्योंकि लेट्स नहीं है, यहाँ पर लेट्स नहीं है, दैट्स व्हाई रिक्वेस्टेड। द ब्रिलियंट स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर to let Ashwari leave the class early as she was suffering from fever, only this mistake. Okay, 6 ओके पूरे हो गए 65। ओके कंप्लीट हो गए। चलो पहले का कितना याद है आपको देख लेते हैं अभी रिवाइज। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। 95% ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज ओवर। अभी कोई भी मेथड, नथिंग इज लेफ्ट। ओके, कोई भी मेथड मुझे पढ़ानी बाकी नहीं है, सारी मेथड हो गई, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अभी आपको कोई भी बोर्ड की एग्जाम में से या कोई भी पेपर में से आपको वो दे पैराग्राफ, ओके, तो आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क आने की 99% चांसेस है, अगर सारी मेथड जानते हो तो। ओके, ओनली पैराग्राफ्स के कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स है और कुछ रूल्स है, वो मुझे आपको पढ़ाने हैं, but that I will teach in the next lecture and then we shall start to learn some paragraphs. ओके, मगर इससे पहले कंडीशन वो है कि सारी मेथड्स आपको, क्योंकि पैराग्राफ में आप जानते हो कि पहले सेंटेंस में कोई दूसरा असर्टिव है, दूसरे में इंपेरेटिव है, थर्ड में एक्सक्लेमेटरी है, लेट्स टाइप है, ऑप्टेटिव है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग वर्ब्स भी होते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये बेसिक सारी मेथड, सारे रूल्स, कभी भी कोई आपको पूछे कि चलो बेटा ऑप्टेटिव के रूल्स बताओ, तो आपको पता होने चाहिए सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट टाइप दैट in this type of method there are only wishes are included that have only 1 or 2 words, good morning type। दूसरी मेथड है, तीसरी मेथड है, ये जो भी लैंग्वेज में जिस भी तरह से आप बोलो आपको क्लियर होनी चाहिए रूल्स। फिर उस टाइम आप याद करके बैठे रहते हो, नहीं 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 ये है वो है इस तरह से, देन आई एम हेल्पलेस, आपको कुछ में हेल्प नहीं कर सकता। ओके, पैराग्राफ में आपको फिर डाउट्स है तो सो अच्छी तरह से रूल्स लर्न कर लेना, और मैं आपको बताता हूँ कि 1 या 2 पेज में सारे रूल्स की समरी लिख लेना।
ओके, जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप विद इन 5 और 10 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हो। मैंने जो एग्जाम के वक्त आपको जो वीडियो भेजा था, ओके, उसमें 9 मिनट्स में सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, इन द सेम वे आपको भी कोई भी रूल्स आपको बोलना है तो विद इन 8 to 9 मिनट्स आप सारे रूल्स बोल दो। ओके, इतने आपको लर्न होने चाहिए, अंडरस्टैंड होने चाहिए। फिर आपको आप सजेस्टेड ऑन भी बोलते हो, फिर सजेस्टेड में टू भूल जाते हो। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लिसनर से पहले टू लिखना है, वो भूल जाते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के चेंजेस नहीं करने हैं, वो कर देते हो। ये सारा होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में हाफ मार्क के सिस्टम्स नहीं है। ओके, वन सेंटेंस पूरा सही लिखा है तो उसका 1 मार्क गिना जाएगा। दूसरा सेंटेंस उसमें आप कनेक्टिव, दूसरा सेंटेंस 1 मिनट, दूसरा सेंटेंस उसमें आपने कनेक्टिव गलत लिख दिया है। ओके, तो फिर पूरा मार्क्स उसका 0 हो जाएगा। ओके, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं आएगा, बाकी का पूरा। फॉर एग्जाम्पल ये 65 वाला है, उसमें ओनली टू नहीं लिखा है, बाकी का सब सही है। ओके, और ओनली इसका वॉज नहीं किया है, बाकी का सब सही है, तो भी मार्क्स तो आपके 0 ही होंगे। ओके, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे आधा मार्क्स मिलेगा। दैट्स वाई ग्रामर में आधे मार्क्स की सिस्टम नहीं होती, टेक्सचुअल में मिल सकते हैं। ग्रामर में तो परफेक्ट आंसर देन ओनली मार्क्स, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ओके, चलो यहाँ थोड़े थोड़े रैंडमली कुछ रिवाइज कर लेते हैं। 6 वाला सेंटेंस, लतीफ आस्क्ड द टीचर मे आई गो आउट सर, तो इसका क्या होगा आंसर? अवध, अवध बोलो, अवध मालविया। अवध हैज नो माइक। Sir, हाँ बोलो। Latif asked the teacher if he might go out. ओके, ही माइट गो आउट। ओके, इसके अलावा कोई बोल सकता है इसका आंसर? लतीफ आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट गो आउट, इसके अलावा कोई आंसर हो सकता है? ऐसा आप गेस कर लो कि ये पैराग्राफ का सेंटेंस है। ओके, अकेला सेंटेंस नहीं है, कुछ पैराग्राफ में इंक्लूडेड सेंटेंस है, तो किस तरह से होगा Latif, आंसर? ओके सिद्धार्थ। Latif asked the teacher with respect if he might go out. ये जो सर है ना, whenever there is sir that we are going to learn in the next lecture, whenever there is sir or madam in the sentence, you have to add extra reporting verb, and that is um, with respect। ओके, वो मैंने पहले भी आपको बताया था, मगर सेंटेंस में चलेगा और एग्जाम में तो सेंटेंस है नहीं। 9th, the teacher said to us, how can I work if you make noise? हिनल, हिनल कलाल बोलो। The teacher asked us that how can she work if you make noise. Wrong. The teacher asked Sir, us how she could work if, ओके, she की किस लिए? क्योंकि टीचर है, और us स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पर होगा they, और make का होगा made, how they made noise। 10th, ही 10th नहीं, सॉरी, Sir, us है तो V नहीं आएगा। नहीं आएगा। Said to us है तो V आएगा। yes, sorry, my mistake, if we made mistake। ओके, मैंने भी मिस्टेक कर दी, नॉइस है तो सॉरी। Then 15, ऋषभ said to नीरव, please wait here till I return। चलो ऋषभ है हमारे क्लास में, बोलो। है आज प्रेजेंट के एब्सेंट? नहीं है, ऋषभ नहीं है तो रुशील पंचाल आप बोल दो, चलो। ऋषभ, ऋषभ,
Rishabh requested Rishabh requested Nirav, please give to her Sir, Rishabh to Rishabh requested Nirav to wait wait there wait there till I return. till he returned. Till he return. रूल्स पढ़ो, कुछ नहीं आता है आपको, क्या किया इतने लेक्चर्स। 17 द फॉक्स सेड टू द क्रो, चलो ये नहीं। 24 Rina said alas she is dead। दिशांत बोलो। आंसर देने के लिए बोला, माइक में से आवाज निकालने के लिए नहीं बोला। आप कितनी माइक आवाज आती है, नॉइस। चलो रहने दो। Sir, हाँ बोलो यश। Rina exclaimed with great sorrow that she was dead. ओके गुड। 31 हैनित बोलो। हाँ सर, दो। अभी ऐसा The कैसे master asked the बोल- peon ओके if he posted his letter yesterday. ओके चलो। Sir, wrong. सर थोड़ा गलत लग रहा है शायद। थोड़ा नहीं, पूरा गलत ही है, थोड़ा गलत है। हाँ। हाँ यश Sir. बोलो। The master asked the peon if he had posted his letter the previous day. ओके करेक्ट। ये इसमें गलती होती है, इसीलिए मैंने पूछा। मैं तो डेफिनेटली आपको गलती होगी और गलती की आपने। ओके 47 My teacher said to me congratulations for getting first class। इसमें वैदेही बोलो। ध्वनि ध्वनि अजाक्या बोलो आंसर। My teacher exclaimed with joy for getting first class। ध्वनि आपकी कैसी प्रिपरेशन है बेटा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या करूं मैं आपका? बोलो बेटा। सर Sir, may I? हाँ जिया बोलो। My teacher congratulated me for getting first class. Yes, my teacher congratulated me for getting first class। ओके फिर 48 वाला जेनिस, आप अपने बोल सकते हो तो बोलो। ओके फिर ये सपारिया वेनु, वही नाम है ना? बोलो इसका है अकाउंट सपारिया वेनु। ओके दैट माय The doctor asked Parthiban टू गो to go for a walk every day. Walked. ओके एडवाइस दी है उन्होंने, एडवाइस पे होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड पार्टिसिपेंट टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ओके सो यूजुअली जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं देते उसमें से रैंडमली मैंने 10 या 12 स्टूडेंट्स को पूछा मैंने। ये वैदेही, उसका माइक ऑफ है, ध्वनि पूरा गलत था। फिर ऋषभ था ना, ऋषभ है। हाँ है, उसको मैंने पूछा।
फिर और 2-4 स्टूडेंट्स से उन लोगों को पूछा, रुशील को पूछा था, तो उसमें से मोस्टली आंसर्स आर रॉन्ग। ओके, सो आपके लिए ये वार्निंग समझ लो, इंस्ट्रक्शन समझ लो, एडवाइस समझ लो या सजेशन समझ लो। ये है नहीं तो रेगुलर स्टूडेंट है तो भी उसने गलती की डीड वाले में। ओके, यस सर। तो फिर आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है आप डिसाइड कर लो बेटा। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन है दैट इज इंक्लूडेड टॉपिक, एक्सक्लूडेड टॉपिक नहीं है। ओके, तो फिर आपको मार्क्स, फिर आप इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ 40, 35 या 38 देन 43 देन इट्स ओके। ओके, अगर आपको पासिंग मार्क्स ही लाने हैं देन इट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम। ओके, और जिन लोगों की भी अभी भी गलती होती है अच्छी तरह पढ़ लो, ध्यान एंड ध्यान। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत कुछ लंबा टॉपिक होता है तो कहते हैं जाने दो, 4 मार्क्स का है ना इनडायरेक्ट स्पीच, जाने दो वो नहीं पढ़ना है। फिर पूछते हैं सर वो कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड कितने मार्क्स का आता है, तो मैं बोलता हूँ 2 मार्क्स है, चलो वो भी जाने दो, कौन इतना पढ़ेगा। और ऐसे भी बचेगा कुछ भी नहीं जाने देते हो तो। और दूसरी बात कि ऐसे ग्रामर आपका अच्छा नहीं है then you will make lot of mistake in essay, report, email, letter, question answers, long answers. Okay, उसमें भी आपकी hundreds of mistakes होगी and that will be noticeable। फिर आपके marks 1.5 आते हैं एवरेज क्वेश्चन में, तो फिर वहां only half या 1 हो जाएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर देखी गई तो इसमें ग्रामर भी आपका थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ी लर्न करो, इसमें कुछ नहीं है लर्न करने में, ओनली 2 या 3 पेज के रूल हो। हमने 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े अभी तक। ओके, फर्स्ट हमने पढ़े एसर्टिव, ओके, दूसरे पढ़े हमने इंट्रोगेटिव, तीसरे पढ़े इंपेरेटिव, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी, ओके, फिफ्थ वन ऑप्टेटिव, सिक्स्थ वन जो आज हमने पढ़े लेट्स टाइप, और सेवंथ लेट मी लेट हिम। ये सारे रूल जब आप समरी लिखोगे 1 या 2 पेज में ही आ जाएगी या 3 पेज में। ओके, लाइन में गैप रखोगे तो उसको अच्छी तरह रूल्स लर्न कर लो, अदरवाइज पैराग्राफ के लिए जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो वो भूल जाओ। ओके, देन एंड देन ओनली यू कैन गेट फुल मार्क्स इन पैराग्राफ। और जब भी मैं रिवीजन करवा दूं अगर रूल्स आपको याद नहीं है देन आई कैन डू नथिंग, मैं आपको रूल्स दूसरी बार नहीं पढ़ा सकता, तो ये अच्छी तरह लर्न कर लो और कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द क्लास। और साइंस का लेक्चर है शाम को, ध्यान रखना मंथन सर का, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।